So let's start with today's themes analysis from the Hindu newspaper. सबसे पहला आपका पॉइंट है कैबिनेट नॉट टू जॉब लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स. The Union Cabinet on Tuesday approved an employment linked incentive scheme with an allocation of rupees 99,446 crore to support employment generation primarily in manufacturing sector. So under the scheme, while the first employees will get 1 month's wage up, that is up to around rupees 15,000, एक महीने में 15,000 सैलरी रहेगी. Employees will be given incentives for a period of about 2 years for generating additional employment. यानी कि अगर वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो उसमें भी इंसेंटिव्स मिलेगा एम्प्लॉयर्स को. With extended benefits for another 2 years for the manufacturing sector. Union Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav told press person after cabinet meeting. Prime Minister Narendra Modi said ELI scheme would boost job creation. The focus on manufacturing and incentives for the first time. Employees will greatly benefit our youth, as he said. So outlay around 99,446 crore का, जैसे कि हमने पहले बताया था, ELI स्कीम में लगाया गया है. ठीक है, इतने पैसे का आउटले प्रिपेयर किया गया है. एंड ELI स्कीम जो है दैट एम्स एट इंसेंटिव्स of creation of more than 3.5 crore jobs over 2 years. Out of these, 1.92 crore beneficiaries will be the first timers entering the workforce. So the benefits of the scheme will be applicable to jobs created between August 1, 2025 to July 31, 2027. Unions skeptical. While the industries have welcomed the announcement, trade unions are looking at it with suspicion. Tapan Sen, Center of Indian Trade Union (CITU) General Secretary said that the move was deceptive scheme for transferring public funds to employers class. सो ELI स्कीम के बारे में आप थोड़ा डिटेल में नोट्स बना लीजिएगा UPSC के एस्पेक्ट में. ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कितना आउटले है, क्या एम है इसका, ठीक है, किस ग्रुप को टारगेट करता है ये. ठीक है, ये इस एस्पेक्ट में आपको नोट्स बनाने होंगे. उसके अलावा नेक्स्ट इज कोर्ट शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इट्स पीपल अगेंस्ट टेरर, सेज जयशंकर. So India has every right to defend its people against terrorism and the partners of the Quad grouping should appreciate that, as said by External Minister S. Jaishankar in Washington DC, where he participated in the Quad Foreign Ministers level meeting on Tuesday. So he said that more focused Quad will help deliver better, while Australian Foreign Minister Penny Wong in her opening remarks made the mention of the March 28 earthquake in Myanmar, where the Quad partners mobilized quick to help the affected communities. A word about terrorism in the light of a recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must be equated, and India has every right to defend people against terrorism and
We will exercise that right. We expect that our Quad partners to understand and appreciate that. So Mr. Jaishankar said in his opening remarks at the meeting, which is being hosted by US Secretary of State Marco Rubio. Mr. Rubio had hosted his counterparts from Australia, India, and Japan on the sidelines of the swearing in ceremony of President Donald Trump in January. Mr. Jaishankar reiterated India's commitment to rules based international order and the free and open Indo Pacific and announced that India was on track to host the next Quad Leaders Summit. So, the meeting in Washington DC is being attended by Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya. It is essential that the nations of Indo Pacific have the freedom of choice, so essential to make right decisions on development and security. So nimble and focused, the working of Quad is also being made more efficient through streamlining the working groups. A more cohesive, nimble and focused Quad will certainly help deliver better, as said by Mr. Jaishankar. He said India had some proposals to make the next Quad summit productive. सो यहाँ पर क्वाड समिट के बारे में बात हो रही है. क्वाड में कितने मेंबर्स हैं? डेफिनेटली देर आर 4 members ऑफ क्वाड, बट विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन क्वाड, ये इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई वॉच ओवर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, तो उसके भी नाम आपको मालूम होना चाहिए यूपीएससी के एस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जर्वर कंट्री इन द क्वाड. इसके अलावा एम क्या है. फिर मेंस में आंसर राइटिंग में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है. ये पूछ सकता है दैट इंडिया इज़ डिफेंडिंग इट्स मिलिट्री एक्शन, दैट इज़ ऑपरेशन सिंदूर, on account of the terrorist activities which was being held in पहलगाम, ठीक है. पहलगाम अटैक के बारे में पूछेगा, ये स्टेटमेंट दे दिया. अब वो ये पूछ सकता है कि what should India do to make world believe and favor its stand, ठीक है, and military actions to support its, not favor would be a too loose word, to support its military actions against Pakistan, ठीक है. तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है. या ये पूछ सकता है कि हाउ टू डील एंड टैकल विद सच टेररिस्ट एक्टिविटीज़, या ये पूछ सकता है कि क्या डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना चाहिए या मिलिट्री एक्शन ज़्यादा वाइबल है, ठीक है. इस तरीके से पूछा जा सकता है. सो बैन ऑन ओवरेज व्हीकल्स फ्रॉम refueling, officials crack whip. So 45 end of life vehicles impounded, owners of 80 others serve notices as enforcement of center's order. Crackdown using ANPR cameras begins with many hits and some misses. So 45 vehicles were impounded and the owners of 80 others were served notices on Tuesday as the ban on overage or end of life vehicles from refueling in Delhi came into effect on Tuesday. So across capital, the fuel stations equipped with automatic number plate recognition, ANPR cameras and loudspeakers denied fuel to overage vehicles, while officials from the Transport Department and Delhi Traffic Police took action against the violators. So NGT, that is the National Green Tribunal, had in 2015 banned overage vehicles defined as petrol vehicles older than 15 years and diesel vehicles older than 10 years in NCR. To implement this prohibition, the Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas, CAQM, had in April ordered
that overage vehicles, including those from other states, would not be allowed to refuel in Delhi from July 1. सो मैनुअल वेरिफिकेशन की अगर हम बात कर ले तो एट फ्यूल स्टेशन नियर सर्वप्रिया विहार 2 officers manually verified the number plates using handheld scanners. ठीक है, अब इसका इन्फोर्समेंट क्यों ज़रूरी है? पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलते हैं ऑन बर्निंग ऑफ पेट्रोल? इन व्हीकल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इन सम अमाउंट निकलता है, वाटर वेपर भी निकलता है, और साथ में कुछ लेड कंपोनेंट्स भी निकलते हैं। ठीक है, जो PM 2.5 में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपको इस तरीके से नोट्स बनाने होंगे कि व्हीकल्स में PM 2.5 के कंपोनेंट्स क्या हैं, पोल्यूशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करती हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा NGT ट्रिब्यूनल जो है, ठीक है, सिर्फ NGT ट्रिब्यूनल ही नहीं, ट्रिब्यूनल जो कि आपका पॉलिटी का पार्ट है, किस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया गया था। ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट शुड बी द पॉलिसी मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन। ठीक है, ANPR क्या है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास, वो क्या है। सो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि ANPR सिस्टम जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, और जैसा कि मैंने बताया ये पूछ सकते हैं कि जो पेट्रोल जो बर्न होता है उससे जो एमिशंस कॉज होते हैं व्हीकल से, उस एमिशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या वो कंट्रीब्यूट करता है PM 2.5 लेवल्स को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मेंस टाइप में कैसे पूछ सकते हैं कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्फोर्सिंग बैन्स ऑन ओवर एज व्हीकल्स इन द NCR रीजन फॉर इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं कि हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक ANPR enhance governance and environmental regulation enforcement, illustrate with examples। या ये पूछ सकते हैं दैट क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ NGT इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इन इंडिया। ठीक है, उसके अलावा ऐसे टाइप थीम्स में ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन टैकलिंग अर्बन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, बैलेंसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड अर्बन इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी इन अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़। ठीक है, ये किस तरीके से होना चाहिए। तो इस पर आपको थोड़ा नोट्स अगर आप प्रिपेयर करके करोगे ना इस तरीके से, आप ऐसे या क्वेश्चन टाइप में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। So next topic is Kerala launches drive to brand Munnar as responsible tourism destination by December। इसका कंटेक्स्ट बेसिकली ये है कि केरला गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू ब्रांड मुन्नर एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। सो बेसिकली मुन्नर एक हिल स्टेशन है फ्रॉम दी अनैरंकल गैप इन इदुक्की। ठीक है, अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये वेस्टर्न घाट्स में कहाँ पड़ता है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, मैप पे आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए, उसके आसपास के रिवर्स क्या हैं, ठीक है, या कैनाल्स क्या क्या हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा 50 लाख रुपीज़ सैंक्शन किए हैं फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम्स केरला गवर्नमेंट ने। की फ़ीचर्स ऑफ द इनिशिएटिव के बारे में अगर हम बात कर लें
तो नेट ज़ीरो टूरिज्म डेस्टिनेशन एम्स टू मिनिमाइज कार्बन फुटप्रिंट ऑफ टूरिस्ट। स्ट्रेटजी क्या है? प्रोटेक्टिंग द डेलिकेट इकोसिस्टम, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। तो प्लास्टिक फ्री जोन की अगर हम बात करें, मेजर्स की अगर हम बात करें, क्रिएटिंग विलेज लाइफ एक्सपीरियंस पैकेजेस, ये मेजर्स लिए जाएंगे प्लास्टिक फ्री जोन क्रिएट करने के लिए। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू लोकल स्टेक होल्डर्स, guides, community leaders, taxi and auto drivers, putting up signage and boards to enforce standards, gender inclusive model promoting gender equality, positioning Munnar as a safe destination for women, tourists and workers, building sustainable gender inclusive tourism models। ग्लोबल प्रमोशन की अगर हम बात करें तो इसमें बात की जा रही है टू इन्हांस मुन्नर्स पॉपुलैरिटी ऑन ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म। यूपीएससी के केस में रेलेवेंस है इसका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रेलेवेंस है, दैट हाउ टू इन्हांस सस्टेनेबल टूरिज्म। ये मेंस ओरिएंटेड हो सकता है। उसके अलावा हाउ टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी इन टूरिज्म। उसके अलावा एक और टॉपिक पे आप फोकस कर सकते हैं, दैट इको टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मॉडल्स क्या होने चाहिए ऑन दीज फुटलाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप इस टॉपिक से कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन किस टाइप में आ सकता है, दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव्स लाइक द वन प्लान्ड फॉर मुन्नर इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और उसके अलावा जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट्स हैं, उनमें से SDG 12, 13, 5 एंड 8 इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है इस वाले टॉपिक में। SDG 12 इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, SDG 13 इज़ क्लाइमेट एक्शन, SDG 5 इज़ जेंडर इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये SDGs भी आप देख लीजिएगा, इनके एम्स क्या हैं। ठीक है, टारगेट्स क्या सेट किए गए हैं अचीव करने के लिए। So next topic is a triangular dynamic in South Asia's power politics. So इसका basic context है that they are focusing on triangular dynamics, that is US, India and Pakistan. Relevance due to shifts in great power politics and strategic realignments in South Asia. Key themes from the editorial are US-Pakistan relationships के बारे में बात की गई, that historically transactional relationship where US interest in Pakistan is driven by counter terror operations, geopolitical value in Afghanistan, tactical cooperations despite long-term mistrust. Recent trend क्या शो कर रहे हैं इसमें आर्टिकल मुझे बताया गया था, renewed US military ties with Pakistan, military leadership engagement, example US Pakistan Army Chief meeting and possible impact on India's strategic interest. Now if we talk about India-US partnership, so US-India ties rooted in democratic values, Indo-Pacific strategy counterbalance to China. Challenges क्या है, US balancing ties with Pakistan complicates India's
security calculus. Isn't it? So India's concern over US military aid to Pakistan is a major concern. Also, there is importance of strategic autonomy for India, expanding Quad engagement, जिसके बारे में अभी बात हुई है. So economic, technological and defense cooperation भी significant है. उसके अलावा अफ़गान फैक्टर भी एक रोल प्लेयर है. US withdrawal from Afghanistan altered regional equations. So Pakistan attempting to retain strategic influence in Pakistan, balance ties between China and US. पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है जो कि इसमें बात की गई है? That engages in double game, seeks US military and economic support and simultaneously nurtures strategic ties with China. Leverages about geopolitical locations, role in counter-terrorism and mineral resources and connectivity routes. ये सब एक इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं. ठीक है, ये लेवरेजेस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं US फेवर कर रहा है. पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू ईरान, that is a major game changer. So Pakistan military dominance shapes foreign policy more than civilian governments. US की क्या strategy है? That US approach oscillates between idealism of democratic values and human rights, realism, geopolitical calculations and transactionalism, that is short term gains, example counter terror cooperation etc. और US का strategic calculus क्या है? That contains China, maintain leverage in South Asia and balance partnership with India and Pakistan both. अब उसमें इंडिया का क्या कंसर्न राइज होता है? दैट इंडिया इज़ अनीज ओवर US पाकिस्तान रीअप्रोचमेंट, मिलिट्री एड पॉसिबली यूज्ड अगेंस्ट इंडिया. तो ये भी कंसर्न है कि जो US की मिलिट्री एड है उसका मिसयूज़ हो सकता है फॉर इंडिया. स्ट्रेटेजिक गोल की अगर हम बात करें, अवॉइड टू फ्रंट्स सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान एंड मेंटेन रीजनल लीडरशिप, ये एक स्ट्रेटेजिक गोल है इंडिया का. एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर टाइज विद US एंड क्वाड पार्टनर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑटोनॉमी. अब UPSC में इसका क्या रिलेवेंस है? डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया US रिलेशंस जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट से. पाकिस्तान जो सिनेरियो में एंटर कर चुका है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इंडिया US रिलेशंस पे. ठीक है, इंडिया का कंसर्न क्या है और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स के बारे में अगर बात करें तो वो क्या होना चाहिए. ठीक है, इंडिया को कैसे अपनी लीडरशिप साउथ एशियन कंट्रीज़ के अमंगस्ट डिफ़ाइन करनी चाहिए. उसके अलावा क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि प्रीलिम्स में ये बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि ट्रायंगुलर डायनेमिक इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स रेफर्स टू स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शंस अमंग विच कंट्रीज़. तो इंडिया पाकिस्तान एंड US, ये इनके बीच में है. उसके अलावा मेंस में ऐसे आ सकता है कि एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रायंगुलर डायनामिक अमंग द US, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर रीजनल सिक्योरिटी इन साउथ एशिया. ठीक है, या ये आ सकता है डिस्कस हाउ ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ US पाकिस्तान ट्राइज इम्पैक्ट्स इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एंड इट्स विजन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी. अब ये जो है ना, अगर आप नोट्स इस तरीके से बना लोगे तो आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. So next topic is using tech to empower women and children. So the Ministry of Women and Child Development, guided by the vision of Viksit Bharat, at the rate 2047, has integrated technology across its schemes to empower women and children. कोर इनिशिएटिव्स इंक्लूड करते हैं
सक्षम आंगनवाड़ी इनिशिएटिव मॉडर्नाइजिंग सक्षम आंगनवाड़ी इनिशिएटिव्स मॉडर्नाइजिंग ओवर 14 lakh आंगनवाड़ी centers with digital tools and real-time data systems to improve nutrition, health and early childhood services. The Poshan Tracker digitally registers over 10.14 crores beneficiaries, including pregnant women, lactating mothers, and children under 6, enabling performance monitoring and bridging service gaps. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो यूपीएससी का फोकस है, मैंने पहले भी बताया कि विमेन बेस्ड जो स्कीम्स हैं उन पे है, और उसके साथ साथ स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा है. ये टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्ट में इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. ठीक है, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर. तो इसमें जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स है, चिल्ड्रन अंडर 6 है. ठीक है, इनेबलिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ब्रिजिंग गैप्स, ये सब ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि बेनिफिशियरीज इंक्लूड करते हैं. सो द मिनिस्ट्री emphasizes legal safeguards and entitlements using portals like SheBox, SheBox for reporting sexual harassment and Mission Shakti. अब ये जो स्कीम्स मैं मेंशन कर रही हूँ, इस पे कंसेप्चुअल नोट्स बनाना ये आपका काम है, आपको ये करना होगा. ठीक है. फॉर असिस्टिंग women in distress, financial empowerment is addressed through schemes like PM Matru Vandan Yojana. ठीक है, offering cash incentives for maternal health and promoting gender equity by extending higher benefits for second girl child. Digital governance tools also strengthen child protection, including carings for adoption process and digital monitoring of child welfare institutions. ये carings जो है, this is a digital tool. ठीक है, this is a digital tool for adoption process and digital monitoring of child welfare institutions. Collectively, these efforts ensure transparency, effective and efficient service delivery and improved governance, aligning technology with social welfare goals. The ministry work exemplifies how digital solutions drive access, justice and dignity for women and children, reflecting India's commitment to a technologically empowered society under Amrit Kaal. ठीक है, तो ये देखिए, ये चाइल्ड एडॉप्शन, दिस इज केयरिंग्स, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम. ठीक है. सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ प्लेड अ की रोल in child protection and welfare under Juvenile Justice Act, Care and Protection of Children Act 2015. The ministry has strengthened the adoption ecosystem through Carings portal. अब यूपीएससी में क्या प्रॉबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि ई सेक्शुअल हैरेसमेंट के लिए कौन सा आपका इनिशिएटिव है, तो दैट इज़ SheBox. ठीक है. या ये पूछ सकता है कि PM मातृ वंदन योजना में हाउ मच बेनिफिट इज़ प्रोवाइडेड इफ़ द सेकेंड चाइल्ड इज़ अ गर्ल. ठीक है, तो ये आपको स्कीम्स इसके लिए आपको मालूम होनी चाहिए. ओके. उसके अलावा मेंस ओरिएंटेड में आपसे पूछ सकते हैं डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर इन इंडिया. या एग्जामिन हाउ इनिशिएटिव्स लाइक पोषण ट्रैकर एंड मिशन शक्ति कंट्रीब्यूट to achieving SDGs related to gender equality and child welfare.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ लुक एट इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी जर्नी। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कल या परसों के वीडियो में बताया था कि स्पोर्ट्स जो है उसकी जो जर्नी रही है उसमें जो एडवांसमेंट की ज़रूरत है फॉर लेटिंग आर स्पोर्ट्स पर्सनस आर स्पोर्ट पर्सनस बेसिकली कॉम्पिटिट एट ग्लोबल लेवल्स। ठीक है, कहाँ लैकिंग हो रही, क्या सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब या जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं जैसे ओलंपिक्स हो गया, क्या इंडिया उन्हें होस्ट कर सकता है, उन्हें होस्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये सब इम्पोर्टेंस है इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, इसमें सबसे पहले तो प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात की गई है। ठीक है, दैट स्पोर्ट्स वर लार्जली मैनेज्ड बाय क्लब्स एंड प्राइवेट एसोसिएशंस, लिटिल स्टेट इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, दैट इज़ आफ्टर 1947, 1954 में देर वॉज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स, दैट इज़ AICS। ठीक है, एंड 1961 में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसे क्रिएट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मेजर पॉलिसी माइलस्टोन्स क्या अचीव हुए हैं अभी तक कि 1982 एशियन गेम्स जो है मार्क द सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट, लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड स्पार्क्ड गवर्नमेंट फोकस ऑन स्पोर्ट्स। ये देखिए, ठीक है। उसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984 में आई। ठीक है, so this was first formal sports policy focus on physical fitness, broad based sports culture and excellence in sports. Then came national sports policy 2001, जिसमें emphasis था on broad basing sports, achieving excellence at national and international levels, improving sports infrastructure and involvement of schools and colleges. Target Olympic Podium Scheme 2014, aimed at grooming elite athletes for Olympics. Target Olympic Podium Scheme TOPS जिसे हम लोग कहते हैं, 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका एम था एट ग्रूमिंग एलाइट एथलीट्स फॉर ओलंपिक्स, डायरेक्ट फंडिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट। खेलो इंडिया प्रोग्राम इन 2018 was launched to identify talent at grassroots levels, improve infrastructure, organize sports competition across India and include Khelo India Youth Games scholarship for youth athletes. नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में ओपन की गई थी टू सेटअप बूस्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड रिसर्च। चैलेंजेस क्या हाईलाइट किए गए हैं, दैट ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के बारे में बात की गई है। inadequate sports science support, lack of infrastructure in rural areas, financial instability for athletes, sports federations internal politics, need for professional sports management एंड मेरे हिसाब से फेवरेटिज़म। ठीक है, फेवरिज्म जो है वो भी एक, और नेपोटिज्म भी जो है एक फैक्टर रहा है। इंडिया की रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, तो इंडियाज़ बेस्ट एवर मेडल टैली 7 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 गोल्ड, ये रहा है परफॉर्मेंस। ठीक है, इंक्रीज गवर्नमेंट फोकस ऑन सपोर्टिंग इलाइट एथलीट्स। सो GS पेपर 2 में इसका रिलेवेंस है दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस इन डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो सकता है। इश्यूज़ रिलेटिंग टू यूथ एंड स्पोर्ट्स, ये आप इस पर नोट्स बना सकते हो। ठीक है, रीसेंट स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया टॉप्स, इस पर आप नोट्स बना सकते हो। एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इनका क्या रोल है।
फिर मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस एंड एग्जामिन द चैलेंजेस दैट हिंडर इंडियाज क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स। जैसे कि मैंने बोला, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस एंड एग्जामिन द चैलेंजेस दैट हिंडर इंडियाज क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है, दैट स्पोर्ट्स पॉलिसी इन इंडिया नीड्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मास पार्टिसिपेशन एंड इलाइट परफॉर्मेंसेस। डिस्कस द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट इनिशिएटिव्स लाइक खेलो इंडिया एंड टॉप्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था डिस्कस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, व्हाई इज़ गूगल बाइंग आउट सम ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़? What are backdoor layoffs? Are other major companies also letting go of their employees? So Google has taken action to reduce its workforce across departments by using a mix of strategies. These measures involve announcing a voluntary exit program for several teams based in the US and mandating hybrid work schedule for remote workers who live within 50 miles of an approved office. सो इसका बेसिक जिस्ट क्या है, दैट गूगल इज़ इम्प्लीमेंटिंग बॉय आउट स्ट्रैटेजीज ऑफरिंग पे आउट्स टू एम्प्लॉयज़ अनविलिंग टू comply with new hybrid policies mandating office presence within 50 miles to quietly reduce workforce without formal layoffs. So this reflects broader tech industry trends of cost cutting amid cost cutting की यहाँ पर जो है इनिशिएटिव है। Amid economic uncertainty, regulatory challenges and antitrust scrutiny, particularly in US, Google faces legal risk if buyouts are perceived as disguised layoffs, circumventing workers' protection. Such corporate workforce management highlights issues of labor laws, digital economy restructuring and regulatory oversight. अब यूपीएससी में आपका इंडिया के रेलेवेंस में लेबर लॉज क्या हैं, लेबर रिफॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है विद रिस्पेक्ट टू द फर्म्स, ठीक है, एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब इसमें प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ बैकडोर ले ऑफ? ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, दैट the term backdoor layoffs recently seen in news refers to which of the following? So it refers to offering voluntary exits to reduce staff without official layoffs. Next topic is drive on to identify persons with multiple voter IDs as said by CEC. So as per Representation of People Act, you are entitled to vote only in the constituencies which or where you are ordinarily resident. For example, if you are a resident in Delhi but own a house in Patna, your vote should be registered in Delhi, not in Patna. This is according to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. ये statement है इनका. With special intensive revision SIR of electoral rolls underway, Bihar Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar on Tuesday said that a person was entitled to vote only in assembly constituency where he or she was ordinary resident and not where the person owned a house. So government officials have begun distributing enumeration forms to all registered voters in Bihar from Saturday. The SIR exercise began on June 25 with printing of the forms and is scheduled to end on September 30 with the publication of updated voter list. Multiple voter cards के बारे में बात की गई. Addressing a group of booth level officers here, the CEC said that one of the key objectives of the drive is to identify many persons who have knowingly or unknowingly managed to retain multiple voter cards of different constituencies. As per the Representation of People Act, you are entitled to vote only in assembly constituency where you are ordinarily a resident. For example, if you ordinarily reside in Delhi,
but own a house in Patna, your vote should be registered in Delhi, not in Patna. तो ये इनका स्टेटमेंट है। और इसमें क्या यूपीएससी के रिलेवेंस में इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो सीआईसी, ठीक है, सॉरी सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन आ जाता है। इलेक्शन रूल्स क्या है, इलेक्शन लॉज क्या हैं, ये आपका पॉलिटी में चैप्टर दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये आ जाता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्चुअल बेसिस पे आप जो आपकी इंडियन पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत की, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि कंसेप्चुअली पूछ लेगा प्रीलिम्स में तो बता नहीं पाओगे आप। सो एज आई टोल्ड यू दैट डिफेंस टेक्नोलॉजी इज़ करेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग 2026-25 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेवी इंडक्ट्स इंडिजिनियस स्टेल्थ frigate in record time. So delivered in 37 months, INS Udaygiri represents a quantum leap in India's Navy in-house design capabilities, says Defence Minister. So this is the second ship of Project 17A stealth frigate that was delivered to Indian Navy, showcasing the country's growing military manufacturing capabilities and enhancing its naval power. INS Udaygiri is the second ship of Project 17A stealth frigates that was delivered to Indian Navy on Tuesday, according to Defence Minister's statement, ठीक है। तो ये एक नेवी शिप है, आपको ये मालूम होना चाहिए, बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्वांटम लीप की बात करें तो P-17A ships have enhanced stealth features and are fitted with an advanced state-of-art weapon and sensor suite, significant upgrade from P-17 class, the ministry said. The ships represent a quantum leap in the Indian Navy's in-house design capabilities at the Warship Design Bureau, the statements added. The weapons suit comprise of a supersonic surface-to-surface missile, ठीक है। तो इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है, ठीक है। और 76 mm गन एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 30 mm एंड 12.7 mm रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। तो ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें जो है ना यूपीएससी ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट स्वैप करके पूछ लेगा कि या 3 जो आपके कॉलम क्वेश्चन है उसमें दे देगा नाम INS उदयगिरी, फिर यहाँ पर दे दिया कि इज़ इट अ पार्ट ऑफ नेवी और एयरफोर्स, और यहाँ पर बोल दिया कि इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल भी है तो ये सही होगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है, ठीक है। तो दोनों ही सही रहेंगे। यहाँ पर चेंजेस कर सकते कि एयरफोर्स है, एयरफोर्स का पार्ट है या आर्मी का पार्ट है, कोई वेपन है, तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा INS तमल इज़ द लास्ट फॉरेन बिल्ड नेवी शिप्स विच इज़ कमीशन। INS नेवी, इंडियन नेवी on Tuesday commissioned INS Tamal F-71, a multi-role stealth guided missile frigate at Yantar shipyard in Russia. So Tamal is the last foreign missile built major warship to be inducted into Indian Navy, in line with the government's emphasis on indigenization under Atmanirbhar Bharat Make in India initiatives. The ship is the 8th in series of Project 1135.6, also known as the Talwar class, and the second of the following on Tushil class frigates.
So designed for blue water operations, Tamal is capable of engaging threats across all the 4 dimensions of naval warfare: air, surface, subsurface and electronic. It is equipped with dual role of BrahMos, supersonic cruise missiles and among other weapons. अब BrahMos और cruise missiles में क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए. रेंज क्या है इनकी, ठीक है. इज़ इट रॉकेट प्रोपेल्ड और नॉट, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए. So next topic is groundwater crisis deepens in Karnataka's hard rock terrain. So basically इसका जो कंटेक्स्ट है ये सिवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे है इन अपर अरावती रिवर बेसिन इन कर्नाटक. अर्कावती river basin in Karnataka, linked to over exploitation and specific geological constraints of hard rock terrain. जियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या बताए गए हैं. सबसे पहले तो हार्ड रॉक टेरेन के बारे में बताया गया है कि कर्नाटक टेरेन इज लार्जली कंप्राइजेज ऑफ ग्रेनाइट, नेस एंड शिस्ट फॉर्मेशंस. उसकी वजह से वाटर सीप इन नहीं हो पाता है. पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू लो पोरोसिटी. अब हार्ड रॉक्स हैं तो लो पोरोसिटी होगी. जोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है. और साथ में लो परमेबिलिटी भी होगी क्योंकि सीप इन नहीं होगा जल्दी, ठीक है. सो ग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो मेनली हैपन्स इन वेदर्ड जोन्स एंड फ्रैक्चर्ड फिशर्स, यानी जहाँ पर क्रैक्स रहते हैं या फिशर्स रहते हैं, फ्रैक्चर्स रहते हैं, या अगर कोई रॉक ऐसा है जो कि वेदर्ड है तो वहाँ से वाटर सीप इन करता है अंदर, ठीक है. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर क्राइसिस. सबसे पहले तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अनरेगुलेटेड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन, अर्बन कंजम्पशन, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. रेनफॉल वेरिएबिलिटी भी होती है वहाँ पर. डिपेंडेंस ऑन साउथ वेस्ट मानसून, डिक्लाइन इन रेनफॉल इन रिसेंट डिकेड्स एंड अर्बन एक्सपेंशन भी हुआ है. दैट बेंगलुरु's growing water demand, groundwater overuse due to inadequate surface water supply, declining recharge because of loss of traditional water harvesting systems like tanks and ponds, and increased impervious services, that is urbanization. Impacts क्या पड़ा है. that wells and bore wells are drying up, increased drilling depth needed for water scarcity for drinking and agriculture, higher cost of water extraction, threats to livelihood in rural areas. अब solutions इसमें क्या बताए गए हैं. that there should be enhancement of scientific water management जिसमें mapping of aquifers होनी चाहिए and use of hydrogeological data for sustainable withdrawal. And also there should be revival of traditional systems, restoring of tanks and ponds, community driven water conservation, regulation. क्या होना चाहिए. that policy should be enforced to control groundwater exploitation. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस होना चाहिए. that shifting to less water intensive crops. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में इसका रिलेवेंस है. जोग्राफिकल फीचर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. ग्राउंड वाटर पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है. जो लोग जोग्राफी ऑप्शनल लिए हैं वो जानते होंगे कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे ग्राउंड वाटर जो क्राइसिस है उस पर आता है, और मे बी मेंस के पेपर में भी आता हो, ठीक है. अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. दैट वाटर क्राइसिस इन इंडिया, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, मैनेजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज सस्टेनेबली, इस तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चंस. उसके अलावा मेंस में क्या आ सकता है. डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन हार्ड रॉक रीजन्स ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस टू कर्नाटक's अपर अर्कावती बेसिन, ओके. या ये आ सकता है. क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन पेनिनसुलर इंडिया, सजेस्ट सस्टेनेबल मेजर्स फॉर इट्स मैनेजमेंट. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो हियर आई एंड माई एनालिसिस. ये मेरा QR कोड है. जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए वो
इसे स्कैन करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर वो इंस्टाग्राम पे नहीं है तो ये जीमेल आईडी दी हुई, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए एंड फिर वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अ वे टू कम्युनिकेट विद मी। ठीक है, मैं आपको गाइड करूँगी कि मुझे फिर कैसे कम्युनिकेशन करना है, प्रोसीड आपसे। ठीक है, सो हियर आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब and share and also like the video. Thank you and have a nice day.